وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تمام احباب محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ امام الانبیاء شفیع روز جزا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. انتہائی واجب الاحترام سامعین، امت بہترین جماعت مسلمین، آج کی یہ تقریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی نسبت سے ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور جنہوں نے بھی اس محفل کے لیے کوشش کی، محنت کی، حصہ وقت کا جس اعتبار سے بھی ڈالا ہے، اللہ جل شانہ سب کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا چیز ہے اور ذکر کا مقصد کیا ہے؟ آج مختلف آوازیں نظر آ رہی ہیں. مثلا کورونا تھا تو ہماری ٹول لگی ہوئی تھی. کیا بتایا جا رہا تھا؟ مختلف پوسٹر لگے ہوئے تھے، بتایا جا رہا تھا ڈینگی ہے، ٹول لگی ہوئی ہے موبائل کے اوپر بتا رہی ہے، مختلف پوسٹر لگے ہوئے ہیں، ڈینگی کے بارے میں آگاہی دی جا رہی ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اتنا خرچہ کیوں کرتے ہیں، آپ اتنا لوگوں کو آگاہ کیوں کر رہے ہیں، اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں، محنت کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لوگوں کی جانوں کو بچانا. کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کی جانوں کو بچانا ہے. تو آپ کو بتانا یہ مقصود ہے. یہ جو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل ہے، اس کا مقصد جان سے زیادہ جو عزیز ہے وہ ایمان ہے، ان کو بچانا مقصود ہے. سبحان اللہ. ہمارے ایمان بچ جائے، ہمارے ایمان بچ جائے، کیونکہ ایمان ہی حقیقت ہے، ایمان ہی اصل ہے، ایمان کے ساتھ ہی ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہے، ایمان کے ساتھ ہی کامیابی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر ڈالا گیا، آگے نمرود، تو ایک چڑیا اپنے منہ کے اندر پانی لے کر جا رہی ہے، تو دوسری چیزیں اس کو کہتی ہیں چڑیا
کہ تم اتنا سا پانی لے کر جا رہی ہو اور یہ اتنی آگ اونچی جل رہی ہے کہ اوپر سے کوئی پرندہ بھی گزرے تو وہ راکھ بن جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تیرے منہ میں جو پانی ہے اس سے کیا بنے گا؟ اس نے کہا بنے نہ بنے، قیامت والے دن ابراہیم خلیل اللہ سے محبت کرنے والوں میں میرا نام آ جائے۔ ہماری ہے تو ادنا سی کوشش، لیکن خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں میں ہمارا بھی نام آ جائے۔ آج اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا، آج اس کی حقیقت سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے نانا جی یوں قرآن مجید کی جو ہے تکمیل ہوئی تراویح میں، اس کے بعد یوں محفل ہو رہی، اس کے بعد میں نے اپنے نانا جی سے پوچھا یہ قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، تراویح میں پڑھا گیا، اب قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، کوئی سمجھ میں بھی آیا ہے کہ نہیں آیا؟ تو انہوں نے، کیونکہ عالم تو تھے نہیں اس لیے میں نے پوچھ لیا، تو فرمانے لگے بیٹا سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے، یہ درائے رحمت کا ہے، چل رہا ہے، اس کے کچھ چھینٹے پڑ گئے ہمارا کام بن جائے۔ خدا کی قسم یہاں پہ رحمت کے نظارے ہیں، رحمت کے فوارے ہیں، اس لیے کہ یہ محفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، اس محفل کو نسبت ذکر رسول سے ہے۔ ایسی محافل کو تو فرشتے بھی ڈھانپ لیتے، ایسی محافل کے اوپر اللہ کی رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے۔ یہ مسجد چھوٹی سی مسجد لگتی ہے، مسجد چھوٹی ہے لیکن کام بہت بڑا ہے، کام بہت بڑا ہے۔ یہ مساجد جتنی بھی روئے زمین پر ہیں، یہ تمام مساجد مسجد نبی کے ساتھ ملا کر جنت کا حصہ بنا دی جائے، اور پھر اللہ کے حضور درخواست کریں گی اللہ ہمیں تو جنت کا حصہ بنا دیا، لیکن جنہوں نے ہمارے اوپر سجدے کیے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، جنہوں نے ذکر رسول سنا ہے، اللہ ان کا کیا بنا؟ ان مساجد کی سفارش پر اللہ رب العزت یہاں آنے والوں کو بھی جو ہے اپنی رحمت سے نواز دے، اللہ ان کو بھی جنت کا وارث بنا دے۔ یہ مسجدیں بھی قیامت والے دن نمازیوں کے حق میں، آباد کرنے والوں کے حق میں سفارش کریں۔ تو آج ہم یہاں بیٹھے اس لیے ہیں قیامت والے دن ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے، اللہ کی رحمت کا سہارا مل جائے، کنارہ مل جائے۔ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان کا ایمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ مسلمان کا ایمان ہے، بلکہ ایمان کا جزو لازم ہے۔ ایمان کی تکمیل اس کو مل ہی نہیں سکتی، ذکر رسول یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ اس لیے دو چیزیں ہیں، انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ جسم اور روح، اس کے اندر اصل روح ہے، روح رخصت ہو جائے انسان میت بن جاتا ہے، فوراً اس کو لحد کے اندر اتار دیا جاتا ہے، اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے، ایک صورت ہے، ایک سیرت ہے۔ صورت اصل نہیں ہے، سیرت اصل ہے، صورت اصل نہیں ہے، سیرت اصل ہے۔ اس لیے اگر صورت اصل ہو تو پھر بلال کو کون پوچھتا، بلال کو کون پوچھتا؟ بلکہ صورت کے اوپر تو دنیا میں امتحان آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام حسین تھے، بھائیوں کے حسد کا ذریعہ بن گئے، حسین تھے، آگے امتحان آ گیا، جیل کے اندر جانا پڑ گیا، قید خانے کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں صورت اصل نہیں ہے، سیرت اصل ہے۔ اللہ صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ سیرت کو دیکھتے ہیں۔ سیرت نام ہے کردار کا، سیرت نام ہے اخلاق کا، سیرت نام ہے کردار اور اخلاق اور اعمال کا۔ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں گے، خدا کی قسم پھر بیٹھے ہوئے تو زمین پر ہوں گے، ہمارا ذکر بھی عرش معلیٰ پر ہو رہا ہوگا، اللہ فرشتوں کی جماعت کے اندر ہمارا ذکر کر رہے ہوں گے،
सूरत असल नहीं है, सूरत असल नहीं है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के यहां मोहतरम वो है जिसके दिल के अंदर तकवा है, जो जिसकी सीरत बनी हुई है, जो सीरत से मुअत्तर और मुनव्वर है, अल्लाह के यहां वही पाकीज़ा है, वही मोहतरम है। जब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबतुल्लाह की छत पे खड़े होकर अजान दे रहे थे, कुछ लोग हंस रहे थे। बिलाल गुलाम है, इसके पांव देखे, रंग के सामने है, इसको कोई पूछता न था तो बिलाल ने भी कहा होगा, कोई पूछता न था, आका तूने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। बिके न थे तो कोई पूछता न था, आका तूने खरीद कर अनमोल कर दिया, आका तेरे साथ निस्बत हो गई। तो फिर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारी शक्ल सूरतों को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह तुम्हारे अमाल को देखता है। तुम बिलाल की सूरत को देख रहे हो, बिलाल की सूरत को देखकर तुम हंस रहे हो। अल्लाह ने जो पैगंबर के दिल के अंदर डाला है, बिलाल को काबतुल्लाह की छत पे खड़ा कर दो। पैगंबर ने बिलाल की सीरत देखी, बिलाल की सीरत देखी, इसी सीरत की वजह से हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल तेरी अजमत के क्या कहने, जब मैं जन्नत के अंदर गया, जन्नत के अंदर तेरे कदमों की आवाज आ रही थी, मैंने जिब्राईल अमीन से पूछा मुझसे पहले जन्नत में कौन है? जिब्राईल अमीन कहते हैं सैयदुल मलाइका हजरत जिब्राईल अमीन, या रसूल अल्लाह ये आपका गुलाम बिलाल है जो चलता तो जमीन है और उसके कदमों की आवाज जन्नत में सुनाई दी जा रही। ये जन्नत में सुनाई क्यों दी जा रही थी कि हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को। आज हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रबीउल अव्वल में तज़किरा होता है, इन महीनों में मोहब्बत रसूल, लेकिन आज हमारे मुआशरे में एक फिरकावारियत को हवा दी जाती है, हालांकि मोहब्बत रसूल के अंदर पूरी दुनिया के मुसलमानों का इत्तिफाक है, पूरी दुनिया मुत्तफिक है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होनी चाहिए, इसमें किसी का इख्तलाफ नहीं। इसको बयान करें, इताअत रसूल में पूरी दुनिया का इत्तिफाक है, किसी मुसलमान का इसमें इख्तलाफ नहीं है कि अल्लाह के नबी की इताअत ना करो। जिक्र रसूल में पूरी दुनिया का इत्तिफाक है, पूरी दुनिया के मुसलमान मानते हैं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा ऐन ईमान है, हमारे लिए क़यामत के दिन ये हमारे लिए सरमाया हयात होगा। और विलादत के अंदर भी पूरी दुनिया के मुसलमानों का इत्तिफाक है, हुजूर की विलादत है, लेकिन एक छोटा सा इख्तलाफ है, कुछ विलादत के दिन पे जश्न मनाते हैं, जश्न पे जोर देते हैं, और कुछ मिशन पर जोर देते हैं। कुछ जश्न पे जोर देते हैं, कुछ मिशन पे जोर देते हैं। जश्न वाले कहेंगे लाठी लगा लो, गलियां सजा लो, मिशन वाले कहेंगे लाठी लगाओ ना लगाओ, ये जरूरत दीन नहीं है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में ये नहीं है, सहाबा के दौर में नहीं थी। मिशन नबुव्वत को अपनाओ, इसलिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो कुफ्फार जश्न मनाते थे। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इस्लाम में जश्न नहीं है, इस्लाम में खुशी के मौके पर शुक्र है कि अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसलिए जब फतह मक्का हुआ, सहाबा किराम ने शुक्र अदा किया है, सजदों में गिर करके अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, इसलिए कि खुशी के मौके पर इस्लाम में जश्न नहीं है, शुक्र है। और गम के मौके पर कुछ लोग मावेला करते हैं, गिरबान फाड़ेंगे, मातम करेंगे। इस्लाम कहता है ये नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में क्या है? सब्र करो, सब्र का है। कोई भी मुसलमान पे सदमा आए, गम के लम्हात आए, तो मुसलमान को क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। तो आज हम मुसलमानों में ये इख्तलाफ रह जाता है, भाई जश्न मनाए या मिशन, एक छोटा सा इख्तलाफ है, इसको छोड़ दो। बाकी चीजें तो पूरी उम्मत के मुसलमानों के अंदर मुत्तफिक है ना। मोहब्बत रसूल, आका से मोहब्बत होनी चाहिए, इताअत रसूल, आका की इताअत होनी चाहिए, और जिक्र रसूल, आका का जिक्र होना चाहिए। इसको आम करो। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायनात की हर चीज मोहब्बत कर, हर चीज
आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती है। जब आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से विसाल हुआ, इंतकाल पुरमलाल हुआ, एक सहाबी दराने के अंदर, जंगल के अंदर बकरियां चरा रहे हैं। दूसरे सहाबी आकर बताते हैं, इमामुल अंबिया सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल क़िबलतैन हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। अल्लाह रिवायात में आता है, सहाबी रसूल ने चेहरा आसमान की तरफ उठाया और अपनी आंखों पर हाथ रखकर कहा, अल्लाह यहाँ के नबुव्वत का दीदार किया करती थी, अब नबुव्वत दुनिया से रुखसत हो चुकी है, अल्लाह इन आंखों की बिनाई को ले ले। सहाबी ने जब आंखों से हाथ उठाया, आंखों से बिनाई जा चुकी थी और दुआ की, अल्लाह क़यामत वाले दिन ये लुटा देना ताकि हम नबुव्वत का दीदार कर सकें। कैसी सहाबा किराम को मोहब्बत थी। कायनात की हर चीज आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियाजुल जन्ना, इसमें एक सतून है, हनाना नामी सतून। हनाना अरबी में कहते हैं रोने को। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, अब वुसअत आ चुकी है, फराखी आ चुकी है, आप एक खजूर के तने के साथ टेक लगा करके खुतबा दिया करते थे, या रसूल अल्लाह अब आपके लिए एक मिंबर बना दिया जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो बना दिया जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर बैठे खुतबा देने के लिए, तो रोने की आवाज आ रही है और आवाज इतनी आई, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर से उठते हैं, उस सतून के करीब जाकर उसको सीने से लगाते हैं। सहाबा ने ये मंजर देखा, सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये क्या माजरा है? आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी मोहब्बत के अंदर, मेरी जुदाई के अंदर ये रो रहा है, मैं इसको मना रहा हूँ, गले से लगा रहा हूँ। और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काना माया फिल जन्ना, ऐ सतून तू रोना, जन्नत में मेरे साथ हो। दुनिया की चीजें भी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन रास्तों से गुजरते हैं, उन रास्तों के कंकर भी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायनात की हर चीज मोहब्बत करती है। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात तकरार के लिए नहीं आई, प्यार के लिए आई। इस प्यार का दर्स दिया जाए, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दर्स दिया जाए। और दूसरी चीज इताअत रसूल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के अंदर दोनों जहानों की कामयाबी है। दोनों जहानों की कामयाबी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के अंदर मौजूद है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के अंदर सहाबा किराम ने खुदा की कसम हर अमल किया है। हजूर को करते देखा, सहाबा किराम ने किया है। वो देखो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजर अस्वद का बोसा दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं, तू एक पत्थर है, मैं तुझे कभी ना चूमता। मैंने देखा है इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे बोसा दे रहे हैं, इसलिए मैं आज तुझे बोसा दे रहा हूं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के अंदर साहबा ने अमल किया। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत सारे रुअसा बैठे हुए, बहुत सारे सरदार बैठे हुए, सहाबी रसूल और भी बैठे हुए। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो राजदार नबुव्वत थे, दस्तरखान लगा हुआ है खाने का, एक लुकमा गिर जाता है, सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला उसको उठाते हैं और खाने की कोशिश करते हैं। सहाबी ने कौनी मारी, हुज़ैफा क्या कर रहे हो? यहाँ बड़े बड़े सरदार बैठे हुए और गैर मुस्लिम भी लोग भी बैठे हुए। तो सैयदना हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैं इन बेवकूफों की वजह से आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दूं? हजूर ने फरमाया, जब लुकमा गिर जाए, अगर खाने के काबिल है तो उसको उठा लिया जाए, उसको शैतान के लिए न छोड़ा जाए। सहाबा इकराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की और जिक्र रसूल मन अहब्ब शैअन अक्सर जिक्रुहु, जिस चीज से इंसान को मोहब्बत होती है उस चीज का इंसान कसरत के साथ जिक्र करता है। जिक्र रसूल का मकसद हमारी जिंदगी बन जाए, हमारी दुनिया बन जाए, हमारी आखिरत बन जाए, हमारे दिलों के अंदर ईमान के अखलाक के बलब रोशन हो जाए। जिक्र रसूल का मकसद ये है हमारे दिल के अंदर नबुव्वत वाले नूरानी आमाल की कंदीलें रोशन हो जाए। जिक्र रसूल का मकसद ये है
आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस नूर है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस खुशबू है कुल कायनात के लिए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस कुल कायनात की रूह है। कुल कायनात की रूह क्या है? आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आका न हो तो इस कायनात का निजाम हो ही नहीं सकता। यह कायनात का निजाम जो चल रहा है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से चल रहा है। हजूर की बरकत से तो इस कायनात की रौनकें हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना ये असल है। असल सीरत से इंसान का अंतर बनता है। सीरत खुशबू का नाम है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का नाम है। और इससे हटकर जो बदी है, गुनाह है, जुल्मत का नाम है, बदबू का नाम है। इसलिए उलमा ने लिखा है नजासत की दो किस्में, एक नजासत हुक्मी है, एक नजासत हकीकी है। नजासत हुक्मी और नजासत हकीकी क्या है? पेशाब है, पखाना है, हर एक को पता है ये नजासत है। और नजासत हुक्मी क्या है? बाज़ औक़ात इंसान को तहारत की जरूरत होती है। ये नजासत हुक्मी है, शरीयत के हुक्म की बिना पर नजासत है। जैसे अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजस, ये मुशरिक नपाक है, नजस है। ये नजासत हुक्मी है, शरीयत में हुक्म लगा दिया। और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके खुशबू है, गुनाह के अंदर बदबू है। इसलिए हदीस मुबारक में आता है जब आदमी गीबत करता है उसके मुंह से इतनी बदबू और स्मेल आती है कि उसके फरिश्तों को भी तकलीफ महसूस होती है। गुनाह के अंदर बदबू है, गुनाह के अंदर जुल्मत है, अंधेरा है, और नेकी के अंदर खुशबू है। देखिए गीबत करते हमें तो कुछ बदबू महसूस नहीं होती, लेकिन अल्लाह का कुरान कह रहा है अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीही मैतन फकरिहतमूह, क्या तुम में से कोई पसंद करता है अपने भाई जो मरा हुआ है, मैयत की शक्ल में है, मैयत वाले भाई का गोश्त नोच कर खाए? कोई नहीं पसंद करता। फरमाया अपने मुसलमान भाई की बुराइयां बयान करना, गीबत करना, वो ऐसे ही है अपने मुर्दा भाई का गोश्त नोचना। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने औरतें आई। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने अपना रोजा अफ्तार कर लिया। मैं कहा या रसूलल्लाह कैसे? ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था। फरमाया तुमने रोजे की हालत के अंदर गीबत की है। या रसूलल्लाह हमने तो रोजा अफ्तार नहीं किया। फरमाया कुल्ली करो, मुंह में पानी डाला तो मुंह से जो है दांतों से गोश्त के टुकड़े निकले हैं, खून के जो है असरात आए हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जो गीबत की है ये गोया ऐसा है तुमने अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाया। अब हमें तो नजर नहीं आता, लेकिन गुनाह में बदबू है, गुनाह में बदबू है। अल्लाह के फरिश्ते जब आते हैं, मौत का फरिश्ता आता है, हदीस में आता है इंसान के जिस्म को सूंघता है, उसको पता चल जाता है यहां से नबुव्वत के आमाल की खुशबू आ रही है, ये शैतान के किरदार की बदबू आ रही है। जैसे हम कोई चीज सालन है उसको चेक करने के लिए ये नहीं है कि उसके अंदर हाथ डाल दो, उसको नाक के करीब करते हैं, पता चल जाता है ये सालन ठीक है या खराब है। यूं अल्लाह के फरिश्ते आकर सूंघते हैं, पता चल जाता है अल्लाह के फरिश्तों को इसके बदन से नबुव्वत के नूरानी आमाल की खुशबू आ रही है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में अल्लाह ने खुशबू रखी। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में अल्लाह ने नूर रखा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन गलियों से गुजर जाते, सहाबा किराम फरमाते हमें तलाश करने में मुश्किल ना आती। उन गलियों से आने वाली खुशबू बता रही होती कि यहाँ आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हो चुका है। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने को महफूज करते हैं और अपने घर में जाकर पेश कर देते हैं। घर वाले उसको खुशबू के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और उस घर से इतनी खुशबू आया करती थी, पूरे मोहल्ले के अंदर उस घर का नाम ही दारुत तय्यबीन रख दिया गया, खुशबू वाला घर। सरकार दो आलम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सैयद आलम, जानिब आलम, रूह दो आलम, इमामुल मासूमीन, खातमुन नबिय्यीन, गुंबद हिजरा के मकी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज है। यूं एक आदमी का गुजर हुआ, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या गुमान है? साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह, ये तो बेचारा गरीब है, इंतहाई शरीफ आदमी है, कहीं कोई बात करे तो कोई इसकी बात सुनने के लिए तैयार ना हो, कहीं कोई पैगाम लेकर जाए तो इसका पैगाम कोई मानने के लिए तैयार ना हो। इतने में एक और शख्स गुजरा। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, इस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहने लगे, या रसूलल्लाह, ये तो बहुत बड़ा नाम वाला है, बहुत बड़े नाम वाला है, कहीं बात करे तो लोग इसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाए, कहीं पैगाम लेकर जाए तो लोग इसके पैगाम को सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार हो जाए, लोग इसकी कदम बोसी करने के लिए तैयार हो जाए। आका बदरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स के जो दूसरे नंबर पर गुजरा है, जिसको तुम कह रहे हो बहुत बड़ा मकाम वाला है, मर्तबे वाला है, उससे पूरी कायनात भर जाए, उससे ये वो मुसलमान जो कमजोर है, इसके दिल के अंदर ईमान का नूर है, ये उससे अफजल और बेहतर है। इसलिए कि असल चीज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है, इसको अपनाना, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना, ये असल है। इसके लिए मेहनत का करना, हमारी सीरत बन जाए। सूरत को अल्लाह नहीं देखते, अल्लाह सीरत को देखते हैं, अल्लाह सीरत को देखते हैं, अंदर को देखते हैं। अंदर बना हुआ है कि नहीं है? अंदर दिल है, दिल के अंदर अल्लाह बसते हैं। जब अल्लाह आ जाए, जब अल्लाह आ नहीं बल्कि छा जाए, फिर कायनात के सारे काम बन जाते हैं, फिर कायनात के सारे काम बन जाते हैं। या अल्लाह की मोहब्बत और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस कदर इंसान के दिल में पैदा होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, उस कदर इंसान इंसानियत की सब में शामिल होता चला जाता है। और जिस कदर अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से दूर होता है, इताअत से दूर होता है, उस कदर इंसान इंसानियत से भी महरूम होता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का नूर दिल के अंदर उतर जाए, दिल के अंदर उतर जाए, अल्लाह इसके दिल को देखते। उलमा कहते हैं, जब इंसान गुनाह करता है, गुनाह की हालत ये हो जाती है, गुनाह की वजह से इंसान का अंदर ये बिगड़ जाता है, स्याह नुक्ते लग लग करके इंसान का अंदर स्याह हो जाता है। कल्ला बल राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, ये दिल स्याह हो जाता है। बल्कि अल्लाह का कुरान क्या कहता है, अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, बसातात गुनाहों की वजह से इस दिल के ऊपर ताले लग जाते हैं। अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या तुम कुरान को समझते नहीं हो? कुरान क्या कह रहा है? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन क्या है? मुअज्जिन किसकी तरफ बुला रहा है? ये मुअज्जिन का कोई अपना नगमा तो नहीं है, मुअज्जिन कोई अपने घर की तरफ नहीं बुला रहा, मुअज्जिन अल्लाह के घर की तरफ बुला रहा है। मुअज्जिन तो ये बता रहा है, मुसलमानों, जिसको दो चीजें मुयस्सर हो जाएं, हो गई, वो कामयाब है। एक है अल्लाह का डर और दूसरा अल्लाह का डर। कायनात के अंदर सबसे बेहतरीन वो इंसान है जिसको अल्लाह का डर मिल जाए और अल्लाह का डर मिल जाए। इसी के लिए तो मुअज्जिन बुलाता है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहते हैं, अफला यतदब्बरून अल कुरान, तुम कुरान को क्यों नहीं समझते? अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, कहीं तुम्हारे दिलों पर ताले तो नहीं लग गए? आज दुनिया की तालीम के लिए क्या है? 5 साल के बच्चे को मारा जा रहा है, चीख चीख करके उसको स्कूल भेजा जाता है। क्या कहा जाता है? जाहिल मजहूल रह जाएगा, तेरा मुस्तकबिल बिगड़ जाएगा, क्या बनेगा तेरा? लेकिन 15 साल के उम्र का बच्चा जिस पर नमाज फर्ज है, उसको वालिदा भी नहीं उठाती, वालिद भी नहीं कहता, तेरा मुस्तकबिल क्या बनेगा? छोटे 5 साल के बच्चे को दुनिया की तालीम के लिए मार रहे हैं। हमने रास्तों में देखा है, स्कूल के बाहर खड़े हो जाए, बच्चे रोते हुए आ रहे हैं, 5-7 साल, लेकिन 15 साल का बच्चा जिस पर सख्ती करनी चाहिए थी, आज उसके ऊपर नहीं सख्ती कर रहे। हम अपने ईमान की फिक्र करें। अल्लाह इस ईमान, अल्लाह क़यामत वाले दिन को जो कामयाबी अता फरमाएंगे, इस ईमान पर अता फरमाएंगे।
इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में दूसरे मकाम पर क्या फरमाया, दिलों की हालत के बारे में फरमाया, दिलों की कैसी कैफियत हो जाती है, ये दिल इनके ऊपर मोहर भी लग जाती है। खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम, इन दिलों, इस दिल पर मोहर लग जाती है, फिर इंसान को हक नजर नहीं आता। दिलों की कैफियत बयान करते हुए अल्लाह का कुरान क्या कहता है मुशरिकीन के बारे में, फइन्नहा ला तामल अबसार, ये मुशरिकीन आंखों के अंधे नहीं थे, अबू जहल की आंखें थी, बल्कि वो तो अपने आप को अबुल हकम कहता था, हिकमत वाला, बसीरत वाला, दाना, समझदार। फइन्नहा ला तामल अबसार, वो आंखों का अंधा नहीं था। यारिफूनहुम कमा यारिफून अबनाअहुम, वो हुजूर को ऐसे पहचानता था जैसे अपने बेटों को पहचाना जाता है। ये हुजूर अल्लाह के नबी है, लेकिन उसके दिल के ऊपर ऐसे पर्दे पड़ चुके हैं। वलाकिन तामल कुलूबुल लती फिस सुदूर, अल्लाह का कुरान कह रहा है वो आंखों का अंधा नहीं था, वो दिल के अंधे थे। इसलिए कहते हैं कि इंसान का दिल भी अंधा हो जाता है, दिल भी अंधा हो जाता है। इस दिल के अंदर हमने नबुव्वत वाला, नबुव्वत के नूरानी आमाल का नूर रोशन करना है। इसी के लिए आज की ये महफिल है, और आइंदा भी हर साल कराते रहोगे ना। ये क़यामत वाले दिन हदीस में आता है 3 आदमी ऐसे हैं, उनके मरने के बाद भी उनके नामा आमाल में नेकियां रुकती नहीं है, जारी रहती है। इदा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु, जब इंसान मर जाता है उससे अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है। औलादुन सालिहुन, जिसके पास नेक औलाद है, सदक़तुन जारिया, कोई नेक सदका जारिया वाला अमल कर दिया, आपने महफिल शुरू कर दी और आने वाली नस्लों में चलती रही। खुदा की कसम, आप अस्साबिकून अल-अव्वलीन में हैं, आपने सदकत की है, आपने पहल की है, अब आपके नामा अमाल के अंदर क़यामत की सुबह तक नेकियां जारी रही। ऐसे गुनाह भी जारी हो जाता है ना। हदीस में आता है सबसे पहला कत्ल इस दुनिया के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने किया है, अपने भाई हाबिल को किया है, कत्ल किया है। क़यामत तक जितने भी कत्ल होते रहेंगे उसका गुनाह काबिल के नाम आमाल के अंदर जाएगा, इसलिए कि उसने कत्ल का तरीका मुतारफ करा। नेकी भी जारी हो जाती है, बदी भी जारी हो जाती है, इल्ला ये कि इंसान सच्चे दिल से तौबा कर चुके। तो हमने ये सदका जारिया वाला काम करना है ना, तो ये दिल के अंदर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी आमाल के बलद रोशन हो जाए। जिक्र रसूल का मकसद ये है, जिक्र रसूल का मकसद ये है। और जब जिक्र रसूल ना हो ये दिल अंधा भी हो जाता है, अंधा भी हो जाता है। इसलिए अल्लाह का कुरान क्या कहता है, लहुम कुलूबुन ला यफ्क़हून बिहा, उनके दिल हैं वो समझते नहीं है। वलहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा, उनकी आंखें हैं वो देखते नहीं है। वलहुम आदानुन ला यस्माऊन बिहा, उनके कान हैं वो सुनते नहीं है। उलाइका कल अनआम, वो जानवरों की तरह है, बल हुम अदल, बल्कि जानवरों से भी बदतर है। यानी जब दिल अंधा हो जाए फिर इंसान जानवरों से भी बदतर बन जाता है। हमारे दिलों के अंदर ईमान का नूर रोशन हो जाए, इसी के लिए जिक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। आज ये हमारे दिलों के अंदर ईमान का नूर आ जाए। कहते हैं ये दुनिया के अंदर जो कुछ नजर आ रहा है ये जरूरत जिंदगी है, मकसद जिंदगी नहीं है। असल चीज ईमान है, असल चीज ईमान। क़यामत वाले दिन बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे जिनके पास ईमान होगा, उनके राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, उसको जहन्नम से निकाल करके जन्नत का वारिस बना दिया जाए। इस ईमान के लिए मेहनत करना, सूरतों के लिए तो मेहनत हो रही है, सूरत बनाने के लिए, इस सूरत को चमकाने के लिए, निखारने के लिए सारी मेहनत इस पर हो रही है। हमारे बड़े जो इस दुनिया से जा चुके, खुदा की कसम उनकी सारी मेहनत सूरत पर होती है। और आज बनावट का दौर है, सजावट का दौर है, मिलावट का दौर है। इसलिए आज हम सूरत बनाने के ऊपर तो मेहनत कर रहे हैं, सीरत बनाने के ऊपर मेहनत नहीं कर रहे। अगर सूरत में कामयाबी होती तो अबू लहब
کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لہب کے معنی چمکتا ہوا، اس کا حسن آگ کے شعلے کی طرح چمکتا تھا، لہب کے معنی چمکنے والا، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سیصلا نارا ذات لہب، اس کو بھڑکتی آگ کا ایندھن بنا دیا جائے گا، کیونکہ اس کے پاس سیرت نہیں تھی، سیرت نہیں تھی۔ اس سیرت کو بنانا، اس سیرت کے لیے محنت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے، ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اس کے لیے محنت کریں گے نا، اس کے لیے کوشش کریں گے نا، کیونکہ آخرت میں ایمان کام آئے گا، ایمان کام آئے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو رہا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ یہ میرا بیٹا ہے، غرق ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ انہ عمل غیر صالح، اس کی صورت تو ہے لیکن اس کے پاس سیرت نہیں ہے۔ نوح کا بیٹا جہنم کے اندر جا رہا ہے، باپ کا نبی ہونا کام نہیں آئے گا۔ دنیا کے اندر آئے نا، کسی کے اوپر کوئی مشکل آ جائے، کہتا پیسہ لگا دو، تھانوں کو خرید لو، کچہریوں پر پیسہ بہا دو، لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا بالتدابی، جو ایمان سے محروم ہو کر چلے گئے، اگر قیامت والے دن وہ اتنا سونا اور چاندی پیش کریں کہ زمین سے لے کر آسمان تک اور زمین کا خلا سارا کا سارا سونے اور چاندی سے بھر جائے، اتنا سونا اور چاندی اللہ کے بارگاہ میں پیش کریں کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچ جائیں، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا بالتدابي اولئك لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ اس کا یہ سونا اور چاندی قبول نہیں کیا جائے۔ نبی کا پورا مدینہ جنت ہے، اس لیے تو شاعر کہتا ہے نام محمد سے خوشبو وفا آتی ہے، ان کے روضہ اطہر سے امتی امتی کی صدا آتی ہے۔ کاش کہ ہم بھی بیٹھے مدینہ کی گلیوں میں، یہ حقیقت ہے وہاں جنت سے ہوا آتی ہے۔ آج بھی جنت سے ہوائیں آ رہی ہیں، آج بھی جنت سے ہوائیں آ رہی ہیں۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو کیا کہنے، وہاں کے پھول اچھے ہیں، وہاں ہر چیز اچھی ہے، زمانے بھر کی چیزوں سے یہاں کے اچھے اچھوں سے وہاں بیمار اچھے ہیں۔ میرے آقا کے سب اصحاب اچھے ہیں، میرے آقا کے سب یار اچھے ہیں، مگر ان میں سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں۔ قدم رکھے جہاں پر، قدم رکھے جہاں پر میرے محبوب مدنی نے، قدم رکھے جہاں پر میرے محبوب مدنی نے، زمانے کے محلوں سے وہ دونوں غار اچھے، وہ دونوں غار اچھے ہیں۔